Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the part 4 of your chapter number 2, that is Human Resource Development for Standard TY and the subject is Commerce 6 HRM. So let's begin. In the last lecture I have taught you in a detail about what do you mean by performance appraisal and why every company is doing it is compulsory for each and every company for doing doing performance appraisal. Correct, very much important for each and every company. If you won't conduct performance appraisal, if you won't evaluate your employees, that is higher chances your company may be a down, because you don't know how your company as well as your employees are working. Clear? It's very much important for performance appraisal for each and every individual, that we have already learned in a last lecture. Correct. Now this is only a recap because we are doing benefits of that, and we have already taught you many times about what do you mean by performance appraisal. Correct. So let us do it again. Performance appraisal is a systematic evaluation of a performance of employees at the workplace. It is a review of an employee's performance of assigned duties and a task. It indicates how well an individual is fulfilling the job demand. It is saying that why we need a performance appraisal should be there, because we are evaluating. We are just checking how our employment, how our employees is doing in a company. We are also checking whatever task we have given to employees, are they doing in a that way or not. If they are not doing it that way, it means they are not following rules and regulation, and if they are following, it means they are totally on a track where you can understand how your employees is been working. Correct. फिर यहाँ पे लिखा है it evaluates not only his performance but also potential for development. We are not seeing our employees only for a present purpose. We are seeing our employees for a future purpose also. Correct. This lecture we will be learning about performance appraisal. In the next lecture to next lecture, we will be learning about what do you mean by potential appraisal. So in a short, and I'll tell you, potential appraisal is a future oriented program. It is a future oriented thinking which we are planning for conducting for our employees. Correct. We are just thinking for a future. But in a performance appraisal, we are not at all thinking for a future. We are just thinking for a present, how our employees is been doing in a present way. क्लियर. इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे चेक करना होता है. Clear? I have already taught you all such things. Now these are the benefits. You can say the benefit, uses. Just for understanding, you can say advantages. You can say anything, but benefits not advantages. But for your understanding, I am saying you can, instead of benefit, the examination can come uses of performance. It is the same. If I am saying a good things of a performance, it is the same thing. Correct. The very first one, why we required a performance appraisal, the very first one, that is performance feedback. विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस फीडबैक हम लोग एम्प्लॉयज़ को पता चलता है हमें कि हमारे एम्प्लॉयज़ का कितना फीडबैक आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से हमें प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. एंड जितना मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, आर यू ऑन अ ट्रैक और नॉट, क्या आप लोग उसके लिए परफेक्ट हो कि नहीं हो, या फिर आपको जितना मैंने सिखाया है आप लोग उसके लिए एक्चुअल में वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. थर्ड वन इज़ मोटिवेशन. डेफिनेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ साथ में आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी. इन केस सपोज यू आर जस्ट प्लानिंग योर एम्प्लॉयज़ टू बी गो फॉर अ हायर पर्पज, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू गो. रीज़न दे थिंक दैट इट्स very hectic, or they'll get a more rules and responsibilities. So you can motivate them that this is a thing where you can motivate with the help of a monetary and non-monetary purpose, where they'll think it, and definitely they'll do their work. Fourth one, that is promotion with the help of a performance appraisal. I am doing a promotion of employees also. I am thinking, सी अगर मैं प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रही हूँ, डेफिनेटली माई डेजिग्नेशन, माई सैलरी, एवरीथिंग इज़ बिन इंक्रीजिंग. इन शॉर्ट माई प्रमोशन इज़ बिन डन. करेक्ट. तो बेनिफिट्स हमारा ये है. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफ़र.
I want my employees to go for another branches or another area of another department. So what I'll do, I'll just transfer my employees from one company to another company, or one department another department. Reason behind that is because I want my employees, because I know my employees is doing great, and that designation or that company, that branch really needs this type of employees. Correct? So for that also we are transferring, and just I am just thinking, मैं सोच रही हूँ कि if I am giving a very hard task to you all, क्या आप लोग उस पर एप्लीकेबल कर पाओगे? तो कभी कभार उसकी वजह से भी I am just shifting you from one department to another department. ओके. नेक्स्ट वन इज़ करियर डेवलपमेंट. डेफिनेटली करियर डेवलपमेंट भी ग्रोथ होता है अगर मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस का अप्रेजल हो रहा है. तो सपोज मैं जूनियर थी, अब मैं सीनियर में आ गई हूँ, तो मेरा प्रमोशन हो रहा है, दैट इज़ इन अनदर वर्ड, बट मेरा करियर का भी डेवलपमेंट हो रहा है. माई सैलरी इज़ बिन इंक्रीजिंग, माई डेजिग्नेशन इज़ बिन इंक्रीजिंग, माई रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इन माई CV, इन माई रिज्यूमे द एक्सपीरियंस विल काउंटेड, एवरीथिंग विल बी डन. करेक्ट? तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से मेरा डेफिनेटली करियर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है. इज इट क्लियर? Many are there, but these are the most important, and others I have already taught in a Zoom lecture. So if you have missed this lecture, see this video, and do not wait for the videos. Join a Zoom lectures. You will understand more about all such things. Next one, as a limitation you can say negative pointers, or you can say the performance appraisal is been lacking behind. Just for that, because of this, many of the performance appraisal, the work is been lacking behind. So these are the negative part of a performance appraisal. The very first one, that is halo effect. बहुत simple है. Halo effect में क्या होता है? I am just thinking only one or two positive factors of an employees. ध्यान देना. Just listen to my examples. सपोज इन अ कंपनी एक एम्प्लॉयज़ है, इज़ वेरी पंचुअल फॉर अ वर्क, बहुत ही पंचुअल है काम पे आने के लिए, बट ही इज़ ओनली हैविंग ओनली वन गुड पॉइंट, दैट इज़ वेरी पंचुअल ऑन अ वर्क. अदर देन दिस, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज एटीट्यूड, हिज स्किल्स इज़ नन अदर, इट्स नॉट एट ऑल मैचिंग द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसा कंपनी चाहती है वैसा कुछ भी उसके अंदर नहीं है, बट उसका सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, दैट इज़ ही इज़ ऑलवेज पंचुअल, हमेशा वो टाइम पे होता है. टाइम मैनेजमेंट ही नोज़ वेरी वेल. तो कंपनी क्या करती है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आते हैं, क्योंकि उसको मालूम है वो पर्सन है जो एम्प्लॉयज़ है वो टाइम पे आ रहा है. करेक्ट? पर उसी को ध्यान में रख के वो लोग क्या करती है, इसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर देती है या फिर इसका प्रमोशन कर देती है. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग ना. हम किसी का सिर्फ एक अच्छा ही देख के उसको हम लोग को, ये हम जैसा हम बोलते हैं ना, हर एक बुराई सिर्फ देखते हैं हम लोग कोई पर्सन में, तो हम लोग उसको जजमेंट देते हैं. तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक अच्छा ही देखे भी हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए. करेक्ट? तो हेलो इफेक्ट में क्या हो रहा है, खाली वन पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखे. उसमें बहुत से अलग अलग शायद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक या दो गिन चुन के, एक या दो जो लास्ट में लास्ट तीन की बात करते हैं, लेकिन हार्डली टू पॉइंटर्स को ध्यान में रख के मैं उसको मैं इसका परफॉर्मेंस का अप्रेजल नहीं कर सकती, बिकॉज हम लोग को 360 डिग्री एंगल से सोचना पड़ता है. करेक्ट? वी हैव टू यूज़ अ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पे हमें हर एक एंगल से उस पर्सन के बारे में सोच के उसको प्रमोशन देना चाहिए. ठीक है? ही डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, ही डोंट नो हाउ टू डू द वर्क, ही डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ डिपार्टमेंट. सो आई कैन नॉट गिव अ होल बर्डन टू देम, whole burden to particular person, because he don't know how to react or how to do that thing. Correct? So halo effect is a negative है, it's not a positive, it's a negative effect of a performance appraisal. Many of the companies used to do this. Many of the companies, they don't wanted to do it, but HR department or the higher authorities person, they just think that person is very good, is punctual, बहुत अच्छा punctual आ रहा है, तो why can't we hire in a higher positions. Correct? So that is the negative point. Second one, that is horn effect, opposite of a halo effect, that is negative. तो हेलो इफेक्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव देखते हैं. हॉर्न इफेक्ट में खाली एक बंदे का एक नेगेटिव देके, एक एम्प्लॉयज़ का सिर्फ एक नेगेटिव पार्ट को देख के, वन नेगेटिव फैक्टर्स को देख के, आई एम जजिंग अ पर्सन. करेक्ट? आई एम जजिंग अ पर्सन. अब सेम अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, वही पर्सन की बात करती हूँ, उसमें अच्छा ये है कि इज़ वेरी पंचुअल. अब इसमें नेगेटिव ये है कि बहुत गंदा कम्युनिकेट करता है, ही डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. तो अब हम लोग उसका दूसरा पहलू देखते हैं. वी आर जस्ट सीइंग अ नेगेटिव
और सेकेंड फेस ऑफ एम्प्लॉयज़, वहाँ पे सिर्फ मैं एम्प्लॉयज़ की सिर्फ एक या दो बुरी बात को रख के मैं उसको जॉब पे नहीं रखूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज़ हम आपका एग्जांपल लेते हैं, आप लोग अगर सपोज़ कॉलेज के टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये तो जजमेंट नहीं दे सकती ना कि आप पढ़ाई में भी बुरे हो। आई कैन नॉट जज नो। अगर आप लेट आ रहे हो तो इसमें पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? आप लेट आ रहे हो बट आप लोग एक्चुअल टाइम पे आपका पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हो, प्रॉपर समझ रहे हो, टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड कम्युनिक स्टडीज़ वर्क, यू आर वेरी गुड इन कोकुलर एक्टिविटीज़, करेक्ट। तो वो सबको ध्यान में रख के आई कैन नॉट जज ओनली आप लेट आ रहे हो तो यू आर वेरी अ बैड गर्ल, करेक्ट। तो मुझे हॉर्न इफेक्ट को भी ध्यान में ज़्यादा नहीं रखना है। इट मीन्स हमें दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सबकी खाली अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देख के उसको जजमेंट नहीं देना है, या खाली एक बुराइयाँ देख के हम उसको जजमेंट हमें बिल्कुल नहीं देना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है आई एम गिविंग यू अ रेटिंग। मैं आपको रेटिंग बना रही हूँ। सपोज आपने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया, तो आप लोग कैसे फीडबैक देते हो, 5 में से स्टार्स डाल के देते हो। तो सेम मैं एम्प्लॉयज़ को रेटिंग देते, जो रेटर्स होते हैं ना, वो रेटिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि इसका परफॉर्मेंस, इसका कम्युनिकेशन, इसका स्किल्स, इसका पंक्चुअलिटी, इसका वे ऑफ एटीट्यूड्स कैसा है। तो मैं आपको पॉइंट है, मैंने बोला आपको मैं आपकी टीचर हूँ, आपको मुझे आउट ऑफ 5 हर एक पॉइंटर्स में आपको मुझे पॉइंटर्स देना है। तो उसमें मेरी सेंट्रल टेंडेंसी देखी जा रही है, आप रेटर हो और मैं आप मेरे को रेटिंग दे रहे हो, करेक्ट। और उसी के बेस में मेरे यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपने कहाँ पे आप लोग ने बहुत फेवरेटिज्म किया है कि नहीं मिस है ना ज़्यादा अच्छी है ना, ब्यूटीफुल है, लेकिन ये मिस ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो उसको मैं 5 पॉइंट दूँगी। भले पढ़ाती बहुत गंदा है, भले पढ़ाती बहुत गंदा है, या उनको तरीका नहीं पता है, या फिर आप लोग कोई आपकी फ्रेंड्स की बात करते हैं, दो जन है, एक बहुत ही, हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही, नॉर्मल दिख रही, ब्यूटीफुल ना, सब एवरी वन इज़ ब्यूटीफुल ऑन अ वर्ल्ड। एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, एक नॉर्मल दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्यूटीफुल दिख रही है हम ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होते हैं, भले वो बोलते हैं ना कैसी होगी, इसका नेचर कैसा, कभी नेवर नो, बट वी आर सीइंग ओनली द आउटर फेस ऑफ अ एम्प्लॉइज़, आउटर फेस ऑफ अ पर्सन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मैं आउटर फेस को देख के उसको रेटिंग करती हूँ, दैट इज़ नेगेटिव ना। मुझे क्या पता उस रियल में पर्सन जेन्युइन है या एक्चुअल में वो अच्छा पर्सन है वो मन से, करेक्ट। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें रेटिंग के ज़रिए हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस को अप्रेजल दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट फैक्टर। बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू थिंक, मुझे कुछ ना कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क का, नेक्स्ट वन इज पेपर वर्क, ये दोनों कंबाइन करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है हमारे यहाँ पे। मैं आपको जजमेंट दे रही हूँ तो एवरी टाइम आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, फिर मैं हायर अथॉरिटी को पास कर रही हूँ, फिर वो फाइल बना रहे हैं, फिर एचआर के पास जा रहा है। तो मैनी ऑफ द हार्ड वर्क वी आर डू, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है मेरा, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज स्पिल्स ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब होता है, आई वुड से दैट कि बोलते हैं ना करा करा भी पूरा पानी फेर देना, वैसे वाला काम होता है। आपकी एक बुराई आपके पूरे काम को ख़राब कर देती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपने कुछ एक कल, या जैसे मुझे एग्जांपल दिया था जूम लेक्चर में, मैं दिन भर काम कर रही हूँ, लेकिन एक बार खाली मैंने खाली एक फ़ोन दिन में यूज़ कर लिया, मम्मी को लगा कि पूरा दिन में क्या करती हूँ, खाली फ़ोन ही लेती हूँ, करेक्ट। दैट इज़ ऑल्सो स्पिल ओवर इफेक्ट। तो हमारे क्या करते हैं, हमारे पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के हम लोग प्रेजेंट हमारा ख़राब कर देते हैं। तो स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ व्हाट दे डू, दे आर आई वुड से दैट दे आर इवेल्युएटिंग द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसी को ध्यान में रखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं देता है। आई गिव यू एग्जांपल, मैंने एक्जूम में भी एग्जांपल दिया था कि सपोज़ आपको, आप सपोज़ नहीं, एवरी वन इज़ मेकिंग अ फूड एट अ होम, करेक्ट। तो अपने घर पे आप खाना बना रहे हो और एक बार आपने खाना पूरा ख़राब कर दिया, जला दिया, मतलब अपनी सब्ज़ी बहुत ख़राब कर दी, जो आप सब्ज़ी बना रहे हो ना, वेजिटेबल्स आप जो बना रहे हो वो आपने पूरा जला दिया, उसमें बहुत मसाला डाल दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप बनाना चाहते हो, यू वांट कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ वो, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम खराब बनाई थी ना, अब तुम मत बनाना। मतलब हमारे पास परफॉर्मेंस को देख के हमारे प्रेजेंट को वो लोग ऑटोमेटिकली ना कह देते हैं, या फिर हाँ भी कहते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पॉइंट, तो हमेशा वो आपको नो ही बोलेंगे, क्योंकि आपका पास्ट खराब है। पास्ट आपका क्या है, खराब है। पास्ट को खराब करके वो लोग प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं, मतलब जो पानी बनाया ना इतना, जो खराब कर देते हैं।
नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे पेपर वर्क एज ए सेट। द लास्ट वन दैट इज़ पर्सनल बायसनेस, हमारे फेवरेटिज्म्स होते हैं, आपकी भी फेवरेटिज्म्स होता है। आई लाइक दिस टीचर अ लॉट, टीचर मुझे पसंद है, कि मुझे टीचर का तरीका पसंद है पढ़ाई का, या फिर टीचर की पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं, आई वो जस्ट वांटेड टू सी हाउ माई टीचर इज़ लुकिंग, करेक्ट। तो पर्सनल बायसनेस, हम लोग फेवरेटिज्म्स करते हैं, हम लोग पार्शलिटी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द कंपनी में जिसको बोलते हैं ना, जो बहुत ही आई वुड से जेन्युइन नहीं है, जिसको डिजर्विंग नहीं है, हम विदाउट डिजर्विंग को भी आगे बढ़ा देते हैं, और जो डिजर्व है उसको हम लोग पीछे कर देते हैं। तो बायसनेस, ये सारे पॉइंटर्स हमारी कंपनी में नहीं होने चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंटर, जिसके वजह से जो जेन्युइन पर्सन है कभी भी वो अपने आप को जॉब सिक्योरिटी में महसूस नहीं करेगा, और ही ऑलवेज फील दैट कि आई शुड नेवर एंटर इनटू अ पॉलिटिक्स ऑफ अ company. Every company has some other politics. I'm not talking about the neta wala governmental thing, but everyone is using, everyone think that they are smarter than any of the person, correct? तो कहीं ना कहीं उसके वजह से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर ज़्यादातर हमारे यहाँ पे और नेगेटिव पॉइंटर्स हो जाता है हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल का। क्लियर? As I'm clear to each and everyone, I hope I have cleared all the things which is been covered into a syllabus. So next time we will be learning about a new topic. Thank you.